Hello everyone, welcome you all once again in the virtual classes. This is the class 11 geography class. As you know that your PT1 exam just near about to come. That's why we scheduled revision classes for you people. So we will revise the 2 chapters which are coming in your PT1 syllabus. Chapter 4 Distribution of Ocean and Continents and Chapter 5 Minerals and Rocks. First, we will complete the revision of Chapter 4 in 3 modules, or we can say that in 3 videos. Then we will complete the 5th chapter in 2 videos. So in this way there are 5 revision video for you people for PT1 practice. So let's start with chapter 4 Distribution of Ocean and Continent, and this is the first video of this chapter. As you know, the continent cover 29% of the surface and rest of covered by the oceans. So in this way we can say that 29% area covered by the continents and rest of means 71% area covered by the oceans. The position of the continent and the ocean bodies as we see them in the map, in the world map or in any map, have not been seen in the past. यानी जो ओशन और कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन हमें आज दिखाई देती है वैसी पास्ट में नहीं थी. Now it is a well accepted fact that the ocean and continents will not continue to enjoy their present position in the time to come. It means कि जब पास्ट में इनकी पोजीशन सेम नहीं थी, सो अब ये एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी इनकी जो पोजीशन है, जो हम प्रेजेंट में इनकी पोजीशन देख रहे हैं ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स की, दैट विल नॉट रिमेन सेम इन द फ्यूचर. So what was the causes behind that we will discuss in this chapter. First, the theory, that is the continental drift. America, Europe and Africa to be once joined together from the known record of the history of the साइंस. यानी जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं हमारे साइंस के, उनके हिसाब से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को एक साथ जोड़कर एक मैप बनाया गया. और ये मैप सबसे पहले किसने बनाया? अब्राहम आर्टेलियस ने. सो अब्राहम आर्टेलियस, ही वॉज अ डच मैपर, मेक फर्स्ट proposed map of America, Europe and Africa in 1596. Then after Antonio Pellegrini, you need to focus the name of these people. Abraham Artelius made the first map, joined together America, Europe and Africa, and Antonio Pellegrini drew a map showing the 3 continents together. So in this way we can say that these Abraham Artelius and Antonio Pellegrini. And the first, Alfred Wegener, a German meteorologist who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory in 1912. Yani with these evidence of Abraham Artelius and Antonio Pellegrini, with these evidence Alfred Wegener proposed the continental drift theory in 1912. यानी कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट की जो फर्स्ट पॉसिबल एंड फेमस फर्स्ट थ्योरी गिवन बाय अब्राहम आर्टेलियस एंड एंटोनियो पेलेग्रिनी ने पहला मैप बनाया जो 3 अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से रिलेटेड था. और अल्फ्रेड वेगनर ने इन दोनों एविडेंसेस के बिहाफ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में फॉर्म की या आर्गुमेंट दिया. दिस वॉज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, एंड दिस थ्योरी रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, यानी कि हमारे वर्ल्ड में ओशन और कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है. द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिव द
evidences. According to Wagner, means the continental drift theory में Wagner ने क्या कहा है? According to Wagner, all the continents form a single continental mass, a mega ocean surrounded by the sea. यानी कि वैगनर के अकॉर्डिंग पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसने एक सिंगल कॉन्टिनेंट फॉर्म कर रखा था और इस सिंगल कॉन्टिनेंट के चारों तरफ वाटर बॉडी ने इसको सराउंड किया गया था. सो द कॉन्टिनेंट और वी कैन से द सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड एज पेंजिया. इस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया बोलते हैं और जिस वाटर बॉडी ने, जिस मेगा ओशन ने उसको चारों तरफ से कवर कर रखा था, दैट इज़ कॉल्ड पेंथालासा. सो दीज आर very much important term, the Pangaea supercontinent and Panthalassa super ocean, or we can say mega ocean. He argued, means the Alfred Wegener argued that around 200 million years ago the supercontinent means the Pangaea began to split. यानी कि near about 200 years ago the Pangaea, the supercontinent began to split. यानी Pangaea जो है स्प्लिट होने लगा, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होने लगा. कब? नियर अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो. पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इन टू लार्ज कॉन्टिनेंट मास एज लॉरेंशिया एंड गोंडवाना. सबसे पहले जो पेंजिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लॉरेंशिया और गोंडवाना. लॉरेंशिया द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेंजिया एंड गोंडवाना वॉज द सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया. So forming the northern and southern component respectively. So in this way the Pangaea and Panthalassa, Pangaea split in different part, first Laurentia and Gondwana, and further these Laurentia and Gondwana divided and split in different subsequent part. And the condition of the continent and ocean, or distribution of ocean and continent, as we can see today. Some evidence for this continental drift given by the Alfred Wegener. यानी कि ये जो डिवीज़न हुआ पेंजिया में और फिर इनका जो मूवमेंट हुआ, इनमें जो ड्रिफ्टिंग हुई, उसके पीछे कौन कौन से एविडेंसेस थे. फर्स्ट, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स. सबसे पहले बुलार्ड ने 1964 में इट प्रोवाइड टू बी द क्वाइट परफेक्ट द मैच वॉज ट्राइडेड. सबसे पहले अफ्रीका और साउथ अमेरिका की शोर लाइन्स यानी किनारों को जोड़ने का सबसे पहला एफर्ट किसने किया? बुलार्ड ने 1964 में. और उसके हिसाब से ये एविडेंट लगाया कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका कभी एक दूसरे के साथ बिल्कुल पास पास थे, यानी जुड़े हुए थे, और ड्रिफ्टिंग की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और इनके बीच में एस शेप ओशियन, यानी कि एस शेप ओशन कौन सा है? पहले भी मैंने वीडियोस में आपको बताया है एस शेप ओशन. फाइंड आउट द नेम ऑफ द एस शेप ओशन. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द नेम ऑफ दिस एस शेप. इन दिस वीडियो यू नीड टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एस शेप ओशन. ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर. नेक्स्ट, रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन. द radiometric dating method developed the recent period have facilitated correlation and the rock formation from different continent across. यानी रेडियोमेट्रिक मेथड की वजह से हम डिफरेंट एरियाज़ में और उनकी रॉक्स की एज को पता लगा पाए हैं. देन द थर्ड एविडेंट दैट इज़ द टिलाइट. टिलाइट मीन्स द ग्लेशियल टिलाइट. द सेडिमेंट ऑफ द ग्लेशियल कॉल्ड एज टिलाइट प्रोवाइड unambiguous evidence of the paleomagnetic यानी रॉक्स की एज के अकॉर्डिंग एंड ऑल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये टिलाइट ने ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट के बहुत सारे एविडेंट प्रोवाइड किए. देन प्लेसर डिपॉजिट लाइक गोल्ड एंड ऑल दिस थिंग. सो दिस वॉज एन अमेजिंग फैक्ट दैट गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राज़ील एंड देर आर रिच अक्रेंस ऑफ द गोल्ड एट द घाना कॉस्ट. सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट टर्म कि गोल्ड बियरिंग रेन तो कहाँ पड़ती है? ब्राज़ील में, यानी कि साउथ अमेरिका में. जबकि घाना कॉस्ट यानी अफ्रीका में क्या मिले हमें? डिपॉजिट्स मिले. यानी जहाँ डिपॉजिट्स हैं वहाँ नीचे कहीं कोई वेन्स नहीं है और जहाँ वेन्स मिली हैं वहाँ ऊपर कहीं कोई डिपॉजिट्स नहीं है. तो ये भी शो करता है कि कभी ना कभी
ब्राज़ील यानी कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों एक साथ जुड़े हुए थे और बाद में ये स्प्लिट हो गए. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल्स. डिफरेंट फॉसिल्स found in different area, they also told the story of ocean or continent drifting. The observation that Lamu occur in India. Lamu, it was a fresh water as well as land species. Madagascar and Africa led some to consider a contiguous landmass, Lemuria. मेडागास्कर, अफ्रीका और इंडिया, ये तीनों पास पास के एरियाज़ हैं जिनको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, लेमूरिया, क्योंकि इन तीनों ही जगह पर क्या मिले हैं, लेमूर के एविडेंसेस मिले, यानी फॉसिल्स मिले हैं. सो वंस अगेन मेडागास्कर, इंडिया एंड अफ्रीका, दे कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल लैंडमास एज लेमूरिया, लिंकिंग दीज 3 लैंडमास. तो इन तीनों ही लैंडमास को लेमूरिया के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ तीनों पर ही लेमूर नाम की स्पीसीज़ के फॉसिल्स मिले हैं. नेक्स्ट, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग. दीज वर द एविडेंसेस, ये सारे एविडेंसेस थे. नेक्स्ट है फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, यानी जो ड्रिफ्टिंग हुई कॉन्टिनेंट में, एक कॉन्टिनेंट स्प्लिट हुए और वो एक जगह से दूसरी जगह पर उन्होंने मूवमेंट किया. सो व्हाट वर द फोर्सेस बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ दीज continents? Force for drifting. There were 2 forces given by the Wagner. First is polar fleeing force and the second one is tidal force. 2 forces given by the Wagner. First, polar fleeing. Polar fleeing का मतलब होता है the rotation of the earth, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ जब रोटेट होती है, अर्थ इज अ स्फीयर बॉडी, व्हेन इट रोटेट देन देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंटर से बाहर की साइड एक फोर्स लगता है और जिसकी वजह से पेंजिया डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ और कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हुआ. सेकेंड फोर्स दैट वाज द टाइडल फोर्स. टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, सन और मून का जो टाइडल फोर्स लगा उसकी वजह से भी कॉन्टिनेंट बाहर की साइड्स मूवमेंट हुए, पेंजिया से बाहर की साइड इनका मूवमेंट हुआ और प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई दिया. बट इन अ प्रेजेंट era, these were not the sufficient force for the drifting of the heavy continents, but these given by the Wagner. Post-drift theories. A number of discoveries during the post-war period added the information of geological literature. यानी कि वो सारी theories जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी पोस्ट वॉर पीरियड के बाद दी गई और वेगनर की थ्योरी के बाद दी गई, ऑल दोज कॉल्ड एज पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज, यानी ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद की आने वाली थ्योरीज. इन थ्योरीज में इंपॉर्टेंट है कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी, मैपिंग ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओशन फ्लोर कॉन्फिगरेशन, प्लेट टेक्टोनिक. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन दीज थ्योरीज. First we discuss convectional current theory. Convectional current theory given by Arthur Holmes in 1930. This is the important line. Convectional current theory किसने दी? आर्थर होम्स में 1930 में. और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में. The possibility of convection current operating the mantle portion. According to the convectional current theory, कि there is a hot magma in the inner portion of the earth and that is possible for the movement of these different continents. These current are generated due to the radioactive element. ये currents अंदर क्यों generate होती हैं? क्योंकि वहाँ पर radioactive element की occurrence है, वहाँ पर है. So due to the radioactive element there is a generation of thermal, या हम कह सकते हैं हीट वेव जनरेट होती हैं एंड दीज हीट वेव्स कॉल्ड एज कॉन्वेक्शन वेव्स. सो मेंटल पोर्शन में इन हीट वेव्स के जनरेट होने की वजह से ऊपर एक कॉन्वेक्शन सेल फॉर्म होता है और जिसकी वजह से मूवमेंट होता है कॉन्टिनेंट्स में. आर्थर होम्स आर्ग्यूड दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट इन द एंटायर मेंटल पोर्शन, जिसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, यानी जहाँ पूरे पोर्शन में लावा या हम कह सकते हैं मैग्मा, क्योंकि लावा तो हम जब कहेंगे जब वो सरफेस पर आएगा, मैग्मा की एग्जिस्टेंस की वजह से इस पूरे मेंटल पोर्शन में एक कॉन्वेक्शन करंट जनरेट होती हैं और वो जब जनरेट होती हैं तो ऊपर की साइड मूव करती हैं और उनकी वजह से प्लेट्स
या हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट होता है. So this was attempt to provide an explanation to the issue of force on the basis of which contemporary scientists discarded the continental drift theory. As I explained you कि Wegener given two forces, polar fleeing and tidal, but these were not sufficient for the movement of the continents. But after the clarification of the continental convectional current theory, this work proved that the continent were drifting. In next video we will revise few more theories. Thank you.